Okay, dear student, today we want to discuss the Ostwald dilution law. So for before Ostwald dilution law, first you should know what is degree of dissociation. Degree of dissociation of weak electrolyte. Electrolytes which is represented by alpha. Degree of dissociation of weak electrolyte. The degree of dissociation is represented by alpha. The definition see here alpha equal to number of molecules dissociated or ionized divided by total number of molecules taken initially. Total number of molecules taken initially. So let us take one example. Example, suppose one acid A is A, weak acid A is A. This is ionizing according to this equation. This one. At T equal to 0, initially suppose we have taken 100 molecules. तो इनिशियली आयोनाइज्ड हुआ ही नहीं है तो नंबर ऑफ कैटायन 0, एनायन इज आल्सो 0. तो नाउ एट इक्विलिब्रियम हम एज्यूम करो लेट 20 मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड. तो आउट ऑफ 100 अगर 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड है तो नंबर ऑफ अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल लेफ्ट इज 80, this side will be 20, this side will be 20 because one acid after ionization giving one cation one anion. तो 20 मोलिक्यूल अगर आयोनाइज्ड हुआ है तो 20 कैटायन 20 एनायन विल फॉर्म. तो नंबर ऑफ अनआयोनाइज्ड मोलिक्यूल लेफ्ट विल बी 80. तो हियर अल्फा इक्वल टू हम एज पर द डेफिनेशन लिखेंगे 20 बाई इनिशियल 100 था 20 बाई 100 इक्वल टू 0.2. तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे. तो नाउ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज Ostwald dilution law for weak electrolyte. The Ostwald dilution law for weak electrolyte के लिए let us state this one. Ostwald dilution law for weak electrolyte. Ostwald dilution law for weak electrolytes. So let us consider one weak monoprotic acid. Monoprotic acid ACA with molar concentration equal to C mole per liter and degree of dissociation at this concentration and at 25 degrees Celsius is alpha. This is degree of dissociation alpha. So now see here, this weak acid ACA will dissociate in water or in solution according to this H3O plus A minus ion. So now at T equal to 0, so here concentration C, this side 0, this is 0. So now at equilibrium यहाँ हम लिखेंगे C into 1 minus alpha. तो यहाँ लिखेंगे C alpha, here is also C alpha.
So now using that concept of equilibrium constant, K equilibrium equal to concentration on the right hand side species divided by concentration on the left hand side species. So since water is solvent here, so which is present in excess amount, so change of concentration of water almost zero. So that is why I am writing here concentration of molarity of water approximately equal to constant. तो क्यों constant है? तो here water is used as a solvent, meaning is which is in excess amount. जब excess amount है तो इसका change of concentration of the water is almost zero. Zero नहीं है but almost zero. जब almost zero है तो इसका molarity almost remains constant. So अगर molarity constant है, जो from this equation now further we can write K equilibrium into another constant, meaning is molarity of water equal to, this will come Ka equal to H3O plus ion into A minus ion divided by HA, to where Ka is another new constant, इसका नाम है ionization constant of acid ASA. It's called the ionization constant of acid ASA. So now if you put the value this here, ये देखो molar concentration of hydronium ion C alpha, anion is also A minus is also C alpha, and at equilibrium molar concentration of weak acid ASA C into 1 minus alpha. If you put this value here, then you will get C alpha into C alpha divided by C into 1 minus alpha. So here 1C get cancelled. So after that हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू C alpha square divided by 1 minus alpha. This is equation number 1. So now let us go to the next page. The next page now, that is हमने लास्ट इक्वेशन 1 में लिया था K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. नेक्स्ट हम लिखेंगे सिंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट alpha is far less than 1, so 1 minus alpha approximately equal to 1. So from equation 1 now, from equation 1 we can write K approximately equal to C alpha square. This is equation number 2, and from this equation further we can write alpha equal to square root of K by C. Rakho isko equation number 3. So now again we can write molarity at equilibrium, molar concentration of hydronium ion equal to molar concentration of anion equal to, ये दोनों इक्वल है मोनोप्रोटिक एसिड के लिए, इक्वल टू C अल्फा इक्वल टू C इंटू अल्फा की वैल्यू पुट करो फ्रॉम इक्वेशन 3 से पुट करो तो C कैंसिल होके देखो यू विल गेट square root of C into K. So how to calculate the concentration of the hydronium ion and the concentration of the conjugate base of the acid, meaning is A minus ion. तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ C into Ka. तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. लेट अस टेक वन सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज in 0.01 molar aqueous solution of acidic acid CH3COOH, the acid is 5% dissociated.
dissociated at 25 degrees Celsius. Then calculate number 1 question. Its ionization constant within bracket K. Number 2, molar concentration of hydronium ion at equilibrium. So how will you solve this numericals? See, now come to the solution. The solution for this. For the solution के लिए देखो, फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. द एसिडिक एसिड will dissociate in water according to this equation. H3O plus ion plus acetate ion. So at equilibrium, this is C into 1 minus alpha, this is C alpha, this is C alpha. So mathematical terms already we discussed. तो dissociation constant of this acid approximately equal to हमने फॉर्मूला लिखा था C alpha square. तो which is equal to C का वैल्यू पुट करो 0.1 into अल्फा कितना बोला था 5%, मीनिंग इज 5/100. तो स्क्वायर हो गया. जब स्क्वायर हो गया आफ्टर कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5.0 into 10 to the power minus 6. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू यू विल गेट दिस वन. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इक्वल टू C अल्फा. तो इक्वल टू C का वैल्यू पुट करो 0.01 इंटू अल्फा जो है 5/100. तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर. तो मोलरिटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन यू विल गेट दिस वन. ये वीक एसिड के लिए ऑस्टोल डाइल्यूशन लॉ ही है. तो वीक एसिड के लिए ऑस्टोल डाइल्यूशन लॉ. नाउ यू मे आस्क वन थिंग, व्हाट इज ऑस्टोल डाइल्यूशन लॉ? ये जो इक्वेशन 3 में आ जाओ. तो ऑस्टोल डाइल्यूशन लॉ ही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये जो K वैल्यू है, दिस K इज कांस्टेंट. अगर K कांस्टेंट है तो हम क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ C, वेयर C इज द मोलर कंसंट्रेशन. मीनिंग इज इफ यू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तुम कंसंट्रेशन डिक्रीज करो तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एट सेम टेम्परेचर, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन ऑफ द एसिड विल इंक्रीज. तो यही है स्टेटमेंट ऑफ Ostwald dilution law. Meaning is if you dilute the solution at constant temperature, degree of dissociation or ionization will increase. यही है Ostwald dilution law. तो next point see here for weak base. Weak base के लिए हम क्या लिखेंगे? Ostwald dilution law for weak base. The weak base के लिए next point see here for weak monoacidic base. Suppose this one base is BOH formula है. तो अगर BOH formula है तो same concept like acid if you apply इसका molar concentration. Let molar concentration of base BOH equal to C mole per liter and degree of dissociation of the base is alpha. Suppose alpha. Then see here, you like acid, if you apply the formula, dissociation formula, in water it dissociate हो रहा है तो रिवर्सिबल साइन. तो ये कैटायन यहाँ एक्वस लिखेंगे प्लस एन आयन, मीनिंग इज हियर हाइड्रोक्साइड आयन, एन आयन.
तो नाउ हियर एट इक्विलिब्रियम हम डायरेक्ट लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, तो हियर C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो दिस साइड हम लिखेंगे C अल्फा। तो सिमिलरली डायरेक्टली के बी इक्वल टू कर दिया, के बी इक्वल टू, तो बी पॉजिटिव इंटू हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। तो हम साइड में लिख देते हैं हियर के इक्विलिब्रियम इंटू H2O इक्वल टू KB, क्योंकि वाटर की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्वेंट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो के इक्विलिब्रियम इनटू वाटर के बी हो गया इक्वल टू यहाँ है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द बेस BOH, उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। तो नाउ इफ यू पुट द वैल्यू हियर, तो हियर अगेन हम लिखेंगे C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। अगेन 1 C कैंसिल, अगर 1 C कैंसिल हो रहा है तो इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। दिस इज अगेन इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। तो अगेन सेम लाइक एसिड हम क्या बोलेंगे, फॉर weak base alpha is far less than 1, meaning is degree of dissociation is far less than 1, बहुत कम होता है। तो so we can write 1 minus alpha approximately equal to 1. So from equation 1 we can write KB approximately equal to C alpha square. This is equation number 2, and alpha equal to square root of KB by, this is B, KB by C. This is equation number 3. तो अगेन सिमिलरली फॉर वीक बेस के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर वो एक बेस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर में KB वैल्यू कांस्टेंट है, तो KB वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो अगेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ C, मीनिंग इज मोलर कंसंट्रेशन। वीक बेस के लिए देखो, if you dilute the solution or if you decrease the concentration of the basic solution, the degree of dissociation of the base or alpha value will increase. Statements of Ostwald dilution rahi hai. So next from this part further we can write now again concentration of the cation is equal to concentration of the anion at equilibrium equal to, तो हम लिखेंगे C alpha. If you put the value of alpha, तो now you are get C into KB, इक्वेशन नंबर 4. तो वीक बेस के लिए लाइक एसिड के लिए जो अप्लाई किया था सिमिलर कॉन्सेप्ट वी कैन अप्लाई फॉर वीक बेस। तो लेट अस टेक वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस अगेन अनदर क्वेश्चन। देखो तो क्वेश्चन इज, हम ऐसे लिखेंगे सी हियर, द क्वेश्चन इज इन 0.05 मोलर aqueous solution of ammonium hydroxide, the base is 10% dissociated, full stop. Calculate the molar concentration of OH minus ion in the solution at equilibrium. तो how will you solve this numerical? जैसे एसिड के लिए जो हम किया था same method we apply for this base also. तो now go to the next page. To come to the solution now. Solution. So first write the dissociation reaction of this base ammonium hydroxide in water. It will dissociate according to this equation, ammonium ion plus hydroxide ion. तो यहाँ लिखेंगे C into 1 minus alpha
this is C alpha, this is C alpha. So now hydroxide ion equal to C alpha. तो C का वैल्यू दिया है 0.05 इंटू अल्फा बोला है 10% बोला है, मीनिंग इज 10/100, तो इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁻³ this is alpha, sorry, molar concentration of hydroxide ion. capital M का मीनिंग है molarity मीनिंग is mole per liter. The at equilibrium, this is mole per liter. TA question. Next point, how will you compare the strength of weak acid or weak bases if their dissociation constant is given? Meaning is हम next topic शुरू करेंगे. Using the concept of degree of dissociation, how will you compare? Suppose two acids given at same molar concentration, दोनों की degree of dissociation different है. These things are given. तो how will you compare which one is a stronger acid, which one is a weaker acid? तो हम कैसे compare करेंगे? तो next heading हम लिखेंगे relative strength of weak acids or weak bases, weak acid or weak bases from their ionization constant. Ionization constant K और Kb. अगर एसिड है तो हम Ka लिखेंगे, बेस है तो हम Kb लिखेंगे. तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो हाउ विल यू कंपेयर? सी हियर, लेट अस टेक द एग्जांपल. Let us take the example. Let two monoprotic acid, monoprotic weak acid HA and HB having ionization constant K1 and K2 and degree of dissociation alpha 1 for acid ASA and alpha 2 for HB, at same molar concentration. मीनिंग इज HA एंड HB जो एसिड है दोनों का मोलरिटी सेम माना है हमने. 1 मोलर भी हो सकता है, 2 मोलर भी हो सकता है, 0.5 मोलर भी हो सकता है, दोनों का मोलरिटी सेम एट सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड, और एक पॉइंट करो, एंड एट सेम टेम्परेचर. देन सी हियर द फॉर एसिड ASA के लिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फा 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K1/C एंड HB के लिए वी कैन राइट अल्फा 2 इक्वल टू फ्रॉम ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ. ये कैसे हुआ है? K1/C एंड K2/C, तो ऑलरेडी हमें एक्सप्लेन किया है. तो अल्फा 1/अल्फा 2 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1/अल्फा 2 इक्वल टू K1/C K2/C. दोनों जगह में C क्यों लिखा है? हमने बोला है कि दोनों एसिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है. तो नाउ इफ यू टेक द रेशियो अल्फा 1/अल्फा 2 इक्वल टू, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा K1/K2. So from this equation देखो तो जिस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हायर होगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आल्सो हायर.
मीनिंग इज उसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा, मीनिंग इज दैट एसिड, तो दैट एसिड हम क्यों बोलेंगे, देखो जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हायर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एट सेम कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर टेम्परेचर, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है तो वीक एसिड है। तो हम अभी कंपेयर करके यही लिख सकता है, सी हियर स्ट्रेंथ ऑफ एन वीक एसिड, strength of a weak acid, हमने लिखे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ के, मीनिंग इज के का वैल्यू देख के हम डिसाइड करेंगे व्हिच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हिच वन इज वीक एसिड। जिसका के हायर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका के कम है वो ज्यादा वीक है वो। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल, सी हियर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। लेट अस टेक वन क्वेश्चन, question is, let us take this example. Question is arrange the following acids, in order of their increasing acidic strength, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट आंसर को रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन के लिए वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज इज द एसिड, देखो दिस आर द एसिड गिवन, एसिड ए इज ए, here given K equal to 1.0 10 to the power minus 8. Another acid A is B, side by side dissociation constant given 1.0 into 10 to the power minus 4. So here another acid A is C, Ka given 1.0 10 to the power minus 6. सो अभी इसको हमें अरेंज करना है। तो हमने पहले देखो डिस्कस करके आया कि स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ के, मीनिंग इज जिस एसिड का के वैल्यू हायर है, जिस एसिड का के वैल्यू हायर है उसका दैट एसिड इज स्ट्रॉन्ग। तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे स्ट्रेंथ of acid directly proportional to स्क्वायर रूट ऑफ के। तो जब स्क्वायर रूट ऑफ के है तो सबसे हमको के का वैल्यू देखना है, सबसे हाईएस्ट किसका है। तो ऑर्डर है HB, उसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो HB इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, देन HC विल कम, देन HA। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंट एसिड्स आर गिवन विद देयर डिसोसिएशन कांस्टेंट K value, then from the value of dissociation constant, तो how will you compare which one is strong acid, which one is weak acid। तो which one is strong acid, which one is weak acid, तो हमें यही मेथड है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए हम स्ट्रेंथ कंपेयर करना एक हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए देखो हम करेंगे इन केस ऑफ पॉली एसिड, हमने ये मोनोप्रोटिक एसिड, मीनिंग इज एन फैक्टर ऑफ एसिड बेस 1 1 है, अगर एसिड का एन फैक्टर मोर देन 1 है तो व्हाट हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिसोसिएशन प्रोसेस। तो उसके लिए सी हियर फॉर पॉलीबेसिक एसिड्स। तो पॉलीबेसिक एसिड के लिए सी हियर लेट अस कंसीडर दैट एसिड इज A3PO4, इसका एन फैक्टर है 3, मीनिंग इज ऑल दिस 3 हाइड्रोजन्स आर आयोनाइजेबल इन एसिडी। तो पॉलीबेसिक एसिड जो है तो दे आर आयोनाइज्ड स्टेप वाइज, 1 by 1 होता है।
तो 1 by 1 जब होता है उसका डिसोसिएशन प्रोसेस इफ यू रिप्रेजेंट H3PO4, तो ये फर्स्ट स्टेप आयोनाइजेशन, ये होगा H प्लस आयोन प्लस H2PO4 1 माइनस। तो इसके लिए हम लिखेंगे K1 इक्वल टू H प्लस आयोन इंटू H2PO4 माइनस डिवाइडेड बाय, तो हम लिखेंगे H3PO4 as per the definition. Take K1 के expression है. Now in the second step, the proton will release from the conjugate base. This one, यहाँ से proton release होगा, तो हम second step लिखेंगे H2PO4 1 minus will ionize to give H plus and HPO4 2 minus. तो K2 equal to H plus into HPO4 2 minus divided by H2PO4 1 minus. Next थर्ड स्टेप, अभी तो यहाँ और एक एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ थर्ड स्टेप रिवर्सिबल साइन प्लस PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, इसी के लिए K3 इक्वल टू H प्लस PO4 3 माइनस डिवाइडेड बाय HPO4 2 माइनस। टी हो गया फर्स्ट डिसोसिएशन, सेकंड डिसोसिएशन, थर्ड डिसोसिएशन। वेयर K1 जो हमने लिखा है इसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, दिस इज सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, दिस इज थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो अभी ओवरऑल के लिए हम देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 को अगर ऐसे लिखेंगे ओवरऑल, मीनिंग इस एक ही स्टेप में पूरा रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओवरऑल के लिए हम ऐसे लिखते हैं H3PO4 रिवर्सिबल साइन all these 3 hydrogen plus PO4 3 minus। तो इसके लिए लिखेंगे Ka, ओनली Ka लिखेंगे इक्वल टू H plus Q डिवाइडेड बाय PO4 3 minus डिवाइडेड बाय H3PO4। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं Ka इक्वल टू K1 into K2 into Ka3, जिससे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिस्कस किया था, तो ये मिल जाएगा। तुम देखो K1 into K2 into K3 करके ये तीनों का मल्टीप्लाई करके देखो, दिस इक्वेशन दिस एक्सप्रेशन विल कम। तो K इक्वल टू K1 into K2 into K3। तो नोट देके यहाँ एक लाइन लिखे रखो, K1, K2, K3, what will be the relation in these two? Basically, see here, note. एक लाइन लिखते हैं हम यहाँ, note. ये रिलेशन जो है K1 is greater than K2 is greater than K3। हमेशा K1 greater than K2 greater than K3 होता है। तो ये एसिड पॉलीबेसिक एसिड के लिए रिलेशन है। तो फर्स्ट आयोनेशन कांस्टेंट का वैल्यू इस विल बी हायर देन सेकंड आयोनेशन कांस्टेंट, तो व्हिच इज ग्रेटर देन थर्ड आयोनेशन कांस्टेंट। तो सिमिलरली, यहाँ सिमिलरली इसका मीनिंग है सिमिलरली फॉर पॉली एसिडिक बेसेस, लाइक एग्जांपल ले लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका n फैक्टर 3 है। तो इसके लिए देखो हम शॉर्टकट फॉर्म में एसिड की तरह हम लिख देते हैं यहाँ Kb इक्वल टू Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3, ये लाइन लिखेंगे हम Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3, where Kb1 is called the first ionization constant of the base, Kb2 second ionization constant, Kb3 third ionization constant, Kb is the overall ionization constant of the base Kb। तो हम ये लाइन लिखेंगे एंड
इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट एंड ये जो रिलेशन है Kb1 इज ग्रेटर देन Kb2 इज ग्रेटर देन Kb3, तो ये रिलेशन फॉलो होता है लाइक एसिड। तो लेट अस टेक वन सिंपल न्यूमेरिकल्स इन केस ऑफ पॉलीबेसिक एसिड और पॉलीएसिडिक बेस के लिए एक न्यूमेरिकल आस्क्स, तो हाउ विल यू सॉल्व, व्हाट विल बी द मेथड, सी हियर लेट सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन calculate the total concentration of H plus ion at equilibrium of 0.06 molar H3PO4 solution if first ionization of the acid is 100%, second ionization of the acid is 50% and third ionization of the acid is negligible, थर्ड आयोनाइजेशन को इग्नोर करो, negligible। तो using this concept, see here we have to calculate the total molar concentration of the H plus ion at equilibrium. So come to the solution now. Solution के लिए H3PO4 ये फर्स्ट आयोनाइजेशन रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो एरो H plus ion plus H2PO4 1 minus। तो नाउ सी हियर, यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे एट T इक्वल टू 0, तो इसका मोलरिटी 0.6 मोलर, दिस इज 0, दिस इज 0। नाउ आफ्टर आयोनाइजेशन, तो हमने बोला है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन 100% है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये एसिड पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 100% जब हो गया देखो, देन दिस विल बी 0.6 मोलर, दिस ऑल्सो 0.6 मोलर, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, 100% है, इसलिए हमने रिवर्सिबल साइन भी नहीं दिया है। तो नाउ कम टू द सेकंड आयोनाइजेशन। नाउ सेकंड आयोनाइजेशन देखो, प्रोटॉन विल रिलीज फ्रॉम दिस एसिड, ये जो एसिड है देखो, तो नाउ सी हियर H2PO4 1 माइनस, तो यहाँ से सेकंड आयोनाइजेशन हो रहा है, तो दिस इज H प्लस आयन प्लस HPO4 2 माइनस। तो नाउ एट T इक्वल टू 0, इसके कॉन्सेंट्रेशन है 0.06 मोलर, तो हियर 0 0। नाउ एट इक्विलिब्रियम, तो इसका 50% डिसोसिएट हो गया, तो लेफ्ट होगा 0.03 मोलर, तो ये फॉर्म होगा 0.03 मोलर, तो ये भी होगा 0.03 मोलर, मीनिंग इज 50% डिसोसिएट हो गया, मीनिंग इज आधा डिसोसिएट हो गया, तो हाफ विल लेफ्ट, तो ये 0.06 मोलर का आधा है 0.03, ये अनआयोनाइज्ड है। तो यहाँ पे देखो, ये जितना डिसोसिएट होगा उतना अमाउंट फॉर्म होगा, तो सिंस आयोनाइज्ड और डिसोसिएटेड पार्ट था 0.03, तो H plus ion is also 0.03, the anion is also 0.03. So now applying this, again let's go to the next page. तो applying this concept, थर्ड आयोनाइजेशन नेग्लिजिबल बोला है, तो उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो नाउ हम लिखेंगे H plus ion टोटल इक्वल टू, तो हमने फर्स्ट से मिला था 0.06 मोलर प्लस सेकंड से हमें मिला था 0.03 मोलर, तो हम पूरा ऐड करने से हमको मिल रहा है 0.09 मोलर। तो दिस इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ion एट इक्विलिब्रियम, टोटल कॉन्सेंट्रेशन।
तो पॉलीबेसिक एसिड के लिए दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आस्क, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो हाउ विल यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल एंड हाउ टू प्रोसीड, तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन है। तो आज के क्लास में हम यहीं पे बंद करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे what is common ion effect, and using the concept of common ion effect how will you compare the degree of dissociation of weak acid or weak bases। डियर स्टूडेंट्स आज तक यहीं पे रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।